کو ملے گا۔ ابو ذر تم یدی دین کے ایک مسئلہ کو سیکھتے ہو تو اس سے بیشی ثواب تم کو ملے گا۔ تو آپ لوگ سبھا میں آئے ہیں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس سبھا تکی আমরা کوئی ایکٹا مسئلہ শিক্ষা حاصل کریا، کوئی ایکٹو مسئلہ سیکھ کر اور یہاں سے اپنے باڑی میں گھر میں لوٹ کر جائیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دو مسئلہ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، دوئیٹا مسئلہ ہمیں بیان کرسی اپنارا بچھن آپ لوگوں نے سیکھ لیا۔ کم سے کم 2000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب آپ لوگوں کو مل گیا۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آئے گا، کوئی ہوتا ہے نا ناستک ٹائپ کا، دین سے قرآن حدیث سے مطلب نہیں، تو وہ کبھی کہے گا کہ حضور نے جو بیان کیا ایک مسئلہ سیکھنے سے 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اتنا بیشی مل جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، اللہ رخا سے کونو کمی نہ آئے، اللہ جتنا چاہے گا دے گا، جتنا چاہے گا دے گا۔ کتاب کے اندر ایک گھٹنا لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا؟ یوسف علیہ السلام ایک جو نبی اصلا، یوسف علیہ السلام زمانہ کھانیر اوبھاو کرছে، ধান নাই, গেহু নাই, চাওয়াল নাই, আটা নাই, কিচ্ছু নাই। 7 বছর পর্যন্ত একটা ধান, একটা गेहूं, একটা जौ चना किच्ছু হয়েছে না। 7 साल तक खाने का अभाव हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहले से बहुत ज्यादा गल्ला उन्होंने स्टॉक करके रखा था, बहुत बेसी 1000 लाख कुंटल टन उनके पास धान, चावल, गेहूं था। तो लोग आते थे और थोड़ा पैसा देते थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको बस्ता में, बैग में भरकर और धान, चावल या गेहूं देते थे। एक आदमी आया और आकर कहा कि हमको भी थोड़ा सा गेहूं, हमको भी थोड़ा आटा दे दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया। तैन खोइला कि ओ यूसुफ मुझको और दो, इतना से काम नहीं चलेगा, और दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और दिया। बादे खोइला कि ना ओ तो खान दिले ओई तो ना, और हमारे दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई सबको एक बैग भर के देता हूं, मैंने तुमको 2 बैग 3 बैग भर के दे दिया, और मैं तुमको कितना दूंगा? दूसरे लोगों को भी तो देना है, सबको देना है, तुम्ही तो खाली एक जन ना, बहुत हजारों हजार मानुष आसन। तो उस आदमी ने कहा कि यूसुफ मैं कौन हूं, আমি কি মানুষ, আমি যদি আমার परिचय तुम्हारे सामने बयान करी, मैं यदि अपना इंट्रोडक्शन तुमको दूंगा तो तुम इतना गल्ला और इतना धान, चावल मुझको दोगे कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम कौन हो बताओ। तो उसने कहा कि यूसुफ, जब तुम मिस्र के बादशाह का नौकर था, गुलाम था, और बादशाह की बीवी, अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा तुम पर आशिक हो गई, और जुलेखा ने तुमसे कहा कि मेरे साथ खराब काम करो, तुमने नहीं किया। दरवाजे की तरफ तुम भागे, जुलेखा ने तुम्हारा दामन पकड़ के, कुर्ता पकड़ के खींचा, पीछे से कुर्ता फट गया, दरवाजा लॉक था, लेकिन अल्लाह ने माया किया, दरवाजा और डोर खुल गया। जैसे ही तुम रूम से बाहर गए, आगे आगे तुम, पीछे पीछे जुलेखा, सामने तुम्हारा मालिक खड़ा था। रूम के बाहर में तुम्हारा मालिक अजीज मिस्र
جو اس زمانے میں خد و منسٹر وزیر خزانہ تھے وہ وہاں پر کھڑے تھے۔ زلیخا نے اپنا سارا دوش اے یوسف تم پر ڈال دیا، اور زلیخا نے اپنے شوہر سے، پتی سے، ہسبینڈ سے کہا کہ امار کونو دوش نائے، اے جے تمہار غلام، تمہار نوکر پورا دوش انار، وہ میرے گھر میں رہتا ہے، میرا کھاتا ہے اور میرے ساتھ خراب کام کرنا چاہتا ہے، ہمار کونو دوش، ہمار کونو غلطی نہ آئے۔ اے یوسف شہیدہ شاہد من اہلیہا، قرآن نے کہا، قرآنیر گھٹنا، ہمار گھٹنا نہ، قرآن نے کہا کہ اس ٹائم میں ایک چھوٹا بچہ تھا، ایک بڑے چھوٹا بچہ، وہ وہیں پر ایک سو رہا تھا، جھولا میں جھول رہا تھا، اس بچے کا ویش 6 ماس، 1 بچر ویش تھا، 2 بچر ویش تھا، ابھی وہ بولتا نہیں تھا، کچھ نہیں بولتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو مکھ دیا اور مکھ میں زبان دیا، اور اس چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ اے عزیز مصر، شک دیا، اے بادشاہ سلامت، یہ دیکھو کہ یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ ان کان قمیصہ، کیا ہے بھائی، قد من دبر، قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، اگر یوسف کا کرتا پیچھے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹ بولتی ہے، یوسف سچ بولتا ہے، یوسفر کونو دوش نہ، یوسفر کونو غلطی نہ۔ تو اے یوسف، یہ جو گواہی اور ساکھی دیا تھا، یہ ساکھی دینے والا میں تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ ساکھی اور گواہی دینے والا میں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا کہ بھائی اس کو جتنا گیہوں چاہیے، جتنا آٹا چاہیے، جتنا دھان چاہیے، چاول چاہیے، تم اس کو لا کر دے دو، لا کر دے دو۔ بے شمار دیا، بے حساب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف، یہ تمہارا کیا نیائے اور انصاف ہے، ایک غریب آدمی آتا ہے تو تم 10 kg دھان دیتے ہو، یہ جو کنٹرول والا ہوتا ہے نا، سرکار کی طرف سے جو آتا ہے دھان، یہ چاول اور گیہوں، کوئی اپنا آدمی ہوتا ہے تو ڈیلر بہت دے دیتا ہے، اور کوئی پرایا غریب ہوتا ہے تو 2 کلو 4 کلو 10 کلو دے گا، اس کا مار کے کھا جائے گا۔ تو یوسف، تم کو ہم نے غلہ کا مالک بنایا، تمہارا کیسا انصاف ہے کہ اس آدمی کو تم نے کنٹل کا کنٹل دے دیا، اور دوسرا کوئی آتا ہے تو 5 kg 10 kg دیتے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے نہیں سنا؟ اے جے مانوشتا کی مانوش، یہ وہ آدمی ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، جے مانوشتا امار اوپرے جے زلیخا غلط الزام دی سے، اس غلط الزام کو اس آدمی نے دور کیا تھا اور میری پاکی کو بیان کیا تھا۔ اے آدمی کے کہنے پر بادشاہ نے مجھ کو نردوش کہا اور اپنی وائف کو دوشی قرار دیا۔ اے اللہ، اس نے میرے اوپر اتنا مایا اور احسان کیا ہے، اسی کارن سے میں نے اس کو اتنا غلہ دیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اب سنو جو مجھ کو کہنا ہے۔ اللہ نے کہا اے یوسف، اس آدمی نے تمہاری گواہی دی تھی اور تم پر زنا کا جو الزام لگ رہا تھا، اس الزام سے تم کو بری کیا تھا، تم نے اس کو کنٹل 2 کنٹل دھان، گیہوں، چاول، آٹا دیا۔ اے یوسف، امار عزتر قسم، امار کبریائی بڑائر قسم، جو مسلمان بندہ میری پاکی بیان کرے گا، سبحان اللہ کہے گا، میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دوں گا، میں اس کو وہ جتنا مانگے گا میں جنت میں اس سے بیسی دوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں، مانگ کر تو دیکھو اللہ کتنا دیتا ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے۔ ابو داؤد شریفের একটা রিওয়ায়াত আছে,
میں میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ کسی کو بیٹھنے مت کہیے، جو بیٹھنا ہوگا وہ خود بیٹھے گا، بالکل مت کہیے۔ آپ لوگوں نے پنڈال بنا دیا ہے، بس خود بیٹھے گا۔ تو اللہ کتنا دیتا ہے اور ایک ٹا ہوتا۔ ابو داؤد شریف روایت، نوجوانوں تمہار কাছে টাইম নাই, সময় নাই, একবারে ছোট আমল, একবারে ছোট আমল, কিন্তু নেকি আর সওয়াব কত বেশি পাওয়া যায়। আবু দাউদ শরীফের রিওয়ায়াত, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করছেন, খাসলাতান লা ইউয়াফিকু আলাইহিমা আবদুম মুমিন ইল্লা দাখালাল জান্নাহ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইলা যে দুইটা কাজ আছে, দুইটা কাজ जो मुसलमान ये दो काम करेगा निश्चय 100% वो मुसलमान जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नहीं कहूंगा मैं तब आप लोग कहोगे। जो मुसलमान ये दो काम करेगा वो निश्चय जन्नत में जाएगा। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुमा कलील हुमा यसीर वमन यामल बिहिमा कलील। ये जो दो काम है दुईटा जे नेकिर अमल एक बारे छोटो, एक बारे दुयोटा काम छोटो, किंतु अमल करने वाला मुसलमानेर संख्याटा एक बारे कम। पराय मुसलमान ए नेकिर दुईटा छोटो काज खूब बेशी सवाब पावा जाएगो, किंतु पराय मुसलमान ए दुईटा काज करे ना। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नेकी का काम क्या है? मेरे मुसलमान भाइयों, 3 साल का बच्चा भी अगर चाहेगा तो ये कर लेगा, 100 साल का बूढ़ा भी चाहेगा तो करेगा, महिला पुरुष नौजुवान सब ये काम कर सकेगा। मैं उसी हिसाब से छोटा छोटा काम बतला रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 नंबर काम ये है कि 5 टाइम की नमाज है। 5 टाइमेर नमाज आसे, नमाज पढ़ने के बाद मुसलमान है तो नमाज पढ़ना है, नमाज तो एक बारे फर्ज, तो मुसलमान नमाज पढ़ता है। इमाम साहब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नमाज शेष 10 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 10 मरतबा, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। कितना हुआ? कत इसे 20। 10 बार अल्लाहु अकबर, कत इसे 30। और 24 घंटार भीतरे 5टा नमाज आसे, 30 बार 5 मरतबा पढ़ना है। कितना होगा? 150, 150। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों मुख से पढ़ोगे तो 150, मोरार पोरे जब इसको वेट और वजन किया जाएगा तो पूरा 1500 का सवाब मिलेगा, 1500 का सवाब मिलेगा। 1 नंबर काम आसान न मुश्किल, आसान। जे नमाजेर पोरे सुन्नत नाय, असर और फजर, जे नमाजेर पोरे सुन्नत नाय, असरेर नमाज फजरेर नमाज, আমরা তো 33 বার সুবহান আল্লাহ, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ, 34 বার আল্লাহু আকবার পড়ি। আর যে নামাজের পরে সুন্নাত আছে জোহর মাগরিব এশা, আমরা এ তসবিহ পড়ি না। আজকে তাকি এই যে তসবিহ আমি পড়ছি কম সে কম ইতনা, বেশি अगर पढ़ता है तो पढ़ो, वरना कम से कम 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर। नंबर 1। 2 नंबर काम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सोने के लिए अपने बेड पर जाते हो, अपने रूम में चला गया, এখন আর কোনো কাজ নাই, আমরা ঘুমাইতাম, सोना है, तो उस टाइम में 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। 100 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मुख से पढ़ोगे 100, किंतु जब क़यामत के दिन तुम्हारे अमल को वजन किया जाएगा, वेट किया जाएगा, तो पूरा 1000 का सवाब मिलेगा, 1000 का। এখন সাহাবে কেরাম প্রশ্ন করলা कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আপনি এ আমলের লোগে একটা খোতা কইছেন, খোতাটা হইল कि आपने ये कहा कि अमल तो हुरू, अमल एक बारे छोटो, किंतु अमल करने वाला मुसलमानेर संख्याटा कम। एक খোতাটা আপনি কি রকম কইছেন? আমরা সবে আমল করব, সবে আমল করব, अमल करने वाला कम कैसे हैं? मेरे नौजवान साथियों, आज के तक की परा, थोड़ा आवाज मिलाओ यार, आज के तक की परा 1450 बच्चों आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारण बतलाया, देखो सुनो गौर करो। आपने कहा कि जब नमाज शेष होता है, इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नमाजो असलम, शैतान थोड़ा दूरे आसे, नमाज शेष होइसे, शेष ओवर लोगे लोगे याती ही शैतान, शैतान आकर हाजिर हो जाता है, वयुज़क्किरुहु हाजतहु, और आकर शैतान उनर कोनो एकटा जरूरी काम, कोनो एकटा जरूरी होता नमाज पढ़ने वाले को याद दिलाता है। जे रकम आप नमाज के लिए आए थे, एक आदमी ने कॉल किया था कि जोहर की नमाज 1 बजे हैं, আমি একটা 10 মিনিটে আপনার বাড়ি আইতেছি, একটা 10 মিনিটে আপনার বাড়ি আইতেছি। এখন নামাজ শেষ হইছে, आपके दिल में ख्याल आया कि अरे भाई हमारा तो कुटुम आने वाला है 1:10 में, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, कोनो दुआ ना है, कोनो दरूद ना है, कोनो तस्बीह ना है, और सब छोड़ छाड़ के भाग कर अपने घर खुद है ना। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि कोनो काम ना है, दुआ ना है, दुरूद ना है, तस्बीह ना है, और वो सीधा उठकर भाग जाता है, उठकर भाग जाता है। इसी तरह से जब रात में सोने के लिए जाता है, सोने के लिए जाता है, तो याती ही शैतान, शैतान आता है और उसको सुला देता है कि सो जाओ, हुजूरे जे तस्बीह और अमल बयान करसे, अच्छा आगामी कल के तकी ए अमलटा करमो, ए काजटा आगामी कल के तकी करमो, आज के सोई जाए, आज सो जाओ। मेरे नौजवान साथियों, मैंने ये हदीस एक स्कूल के स्टूडेंट के सामने, कॉलेज के स्टूडेंट के सामने बयान किया। ए जे कॉलेजेर प्रिंसिपल साहब ताइन कोयला के हुजूर, आपकी यदि इजाज़त और परमिशन हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल कहो। तो उसने कहा कि अब शैतान आने की ज़रूरत नहीं है, सबके हाथ में शैतान है, सबके हाथ में ये जो मोबाइल है, ये बड़ा शैतान जब सोने के लिए अपने रूम में जाता है तो नेट चालू करता है, और उसके बाद रंगुलू, नौगांव, गुवाहाटी, दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका, लंदन, पूरा दुनिया का सैर करता है, और रात 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, उसके बाद मोबाइल रखकर वो सोएगा। तो अभी कोई मेहमान आ रहे हैं शायद, इंशाअल्लाह फिर क्या करना बयान करना सकता हमारा शेष बयान। अच्छा, এতিয়া আমাৰ হুজুৰৰ বয়ান কেইমিনিটৰ কাৰণে স্থগিত থাকিব। আমাৰ মঞ্চত সদৌ অসমত অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া সমাজ সেৱিকা শ্ৰীমণি শিখা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী উপস্থিত হ'ব। তেখেতে সমাজতন্ত্ৰ হিচাপে কিছু কথা ৰাখিব। তেখেতৰ পাছত ইনশাআল্লাহ আকৌ আমাৰ হুজুৰে তেখেতৰ মধুৰ বয়ান ৰাখিব ইনশাআল্লাহ।
আচ্ছা এরকম নাকি কথা তো আমার বোঝাই করবেন না আচ্ছা ঠিক আছে বেয়াদবি ক্ষমা করিব হুজুরে ইনশাল্লাহ আলোচনা কৰি থাকিব আমাৰ শিকা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী ষ্টেজত বহি তেখেতৰ কিছু আলোচনা শুনিব তেখেতৰ বয়ানৰ পাছত ইনশাল্লাহ তেখেতে কথা ৰাখিব तो मैं ये कह रहा था कि दीन की बात सीखने से दीनेर मसलार शिक्षा हासिल करले बहुत बेशी नेकी पावा जाए बहुत बेशी नेकी पावा जाए अपनारा आज के वाजेर सभा ऐसे आप लोग जलसे में आए हैं नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह कुरानेर कोई एकटा आयतेर शिक्षा हासिल करिया ए जगह तक हमरा जाइमो दीनेर कोई एकटा मसलार शिक्षा हासिल करिया ए जगह तक हमरा जाइमो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों जो ऐलान हुआ मोहतरमा शिखा शर्मा साहिबा आएगी और वो यहाँ मंच पर रहेंगी बयान सुनेगी तो आप लोग बस जितना टाइम है मेरा उतने टाइम के अंदर एक दो बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। एक बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह ताला ने हमको और आपको जो कीमती कीमती वस्तु दिया है अल्लाह नेमत जो दामी दामी नेमत हमको और आपको मिला है उनमें से एक बड़ो दामी मूल्यवान बड़ो कीमती नेमत है हमारा संतान हमारी और आपकी औलाद सिले में लोरस वाली लड़का बच्चा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पूछो उस आदमी से जिसकी शादी हो गई शादी हुआर करे 2 बच्चर 3 बच्चर 5 बच्चर हो गए किंतु संतान नाय सिले में नाय वो दोनों मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ कितना परेशान रहता है कितना परेशान रहता है। अगर हिंदू भाई है तो मंदिर जाएगा पूजा करेगा और अपने धर्म के अनुसार वहाँ अपने देवी दुर्गा से वो संतान का सवाल करता है संतान मांगता है। मुसलमान भाई बहन है तो वो आलिम उलमा के पास जाएगा इमाम साहब के पास जाएगा और यदि कोई ज़्यादा अकीदा ख़राब वाला होता है मज़ार पर जाएगा किसी पीर फ़कीर के पास जाएगा और जाकर उसको हदिया भी देगा और उसके साथ साथ उससे दुआ भी कराएगा और संतान मांगेगा। तो संतान सिले में लोरस वाली ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संतान लोरस वाली का हक बयान किया। एक बाप के ऊपर एक माँ के ऊपर गार्जियन होने के हिसाब से अपने लड़के बच्चे का क्या हक होता है ये आप लोग सुनिए और अपने बच्चों का जो हक है उसको अदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वुलिदा लहू वलद फलयुहसिन इस्महु व अदबहु फइज़ा बलग फलयुज़व्विज